Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I, Ms. Sadia Iqbal, on behalf of Garrison Academy Senior Campus, welcome you all to ABSEC's online support program. As you all know that this is our fifth week going on and second day for fifth week. So let us get started with our today's lecture. Today's topic is very important, graph, and you are already familiar with graph. We have done this topic in detail in chapter number 11 in first year. So it is almost the same, except for a few things that you will be learning about continuous and discontinuous functions as well, and you'll be drawing the graphs of continuous and discontinuous functions. So today's objectives are, at the end of this inshallah you'll be able to understand how to draw the graph of given functions, right? So the graphs would be implicit functions and exponential functions, continuous functions, discontinuous functions. So you'll be drawing graphs of those functions, and we will be doing question number 1, 2 and 3 by using this above mentioned topic. So let us get started. First of all, what is a graph? I'm sure you people know about it, but still I'm going to make you clear one thing. See, if I have a equation like this, y equals to, let us say, 2x, right? Now how would I be drawing graph of this thing? Definitely I will be putting in values of x and I'll be getting values of y, right? For each different value of x there would be different value of y. For example, if I'm going to put x is equal to 1, y would be 2 into 1, which is 2, this thing. So the point would be 1 2, एक point आ गया मेरे पास. Now when I'm going to take, okay, x is equal to 2, my y would be 4, right? यहाँ पे देखिए 2 into 2 4. So this would be, so the point would be 2 4, 2 for x, 4 for y, राइट. सो इस तरह से, और हम फिर इसी ग्राफ को हम प्लॉटिंग करते हैं. अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ. सो वी विल बी प्लॉटिंग द ग्राफ हाउ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इनमें से विच वन इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? दिस एक्स, बिकॉज दिस डज नॉट डिपेंड ऑन दिस वाई. वाई की वैल्यूज़ डिपेंड कर रही हैं एक्स पे. जो जो एक्स की वैल्यू होगी उस हिसाब से वाई का डिफरेंट आंसर आता जाएगा. सो एक्स इज़ बीइंग independent variable, right, and y being dependent variable. So x being independent variable, और independent variable को हम हमेशा x एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करते हैं. ये x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, और ये हमारा y एक्सिस, एंड दिस इज़ आर नेगेटिव y एक्सिस, राइट. अब प्लॉट कैसे किया जाता है? यू पीपल नो अबाउट दिस. ये 1 2 इस तरह से पॉइंट्स जो बन जाते हैं इसको हम प्लॉट करते हैं, लाइक 2 along x एक्सिस एंड 4 along y एक्सिस. तो यहाँ से आप इसको नंबरिंग करेंगे जो आपका स्केल डिसाइडेड होगा. 1 2 लेट्स से, एंड दिस इज़ -1 -2, और इसके ऊपर अब मुझे प्लॉट क्या करना है? पॉइंट विच इज़ 4. सो ऑन 2 ऑन x एक्सिस एंड 4 ऑन y एक्सिस. सो आई विल बी टेकिंग 2. इसकी सीध में मुझे ऊपर y एक्सिस के ऊपर 4 के साथ डॉट लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज़ 1 2 3 4, सो आई विल बी ड्राइंग माई पॉइंट ओवर हियर. ये मेरा एक पॉइंट प्लॉट हो गया. दिस पॉइंट इज़ हियर, दिस इज़ 2 4, राइट. सो इसको बेसिकली ग्राफ कहते हैं. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस दिस थिंग. So this is the definition basically. Let me show it to you here. Graph of a function f is set of points of the type x y, right, such that y is equal to f of x. यानी जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है, you have to make that equation of this form. For example, if I have x square plus y square equals to 9, let us say. अब ये मेरी इक्वेशन है, मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो क्या कहा मैंने कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y को एक साइड पे सेपरेट करके रेस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी ऑन द अदर साइड, और वो फंक्शन ऑफ x होगा. यानी कि यू विल बी डूइंग इट दिस वे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. बल्कि आई हैव मेंशन दिस लाइक, यू नो, this question, this is a question basically of the exercise, first question of the exercise, and I'm going to describe this question inshallah in the next slides as well, but still let me complete it anyways in this one here too. This would be now y equals to plus minus radical of 9 minus x square. Now you can see for each value of x we will be getting two values of y, प्लस और माइनस, दो वैल्यूज़ y की आएंगी. एनीवेज x बीइंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y बीइंग डिपेंडेंट वेरिएबल. तो आप देख सकते हो हमने इस फॉर्म में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में इसको सेपरेट कर लिया. नाउ ये इक्वेशन बन गई. सो विल बी गिविंग वैल्यूज़ टू x, x बीइंग डोमेन एंड y बीइंग रेंज. y की जो आंसर्स आते जाएंगे दैट वुड बी योर रेंज, राइट. सो ऑलवेज कन्वर्ट द इक्वेशन टू द फॉर्म y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स.
ब्रीफ इंट्रो था. आई होप यू आर अंडरस्टूड, यू गॉट इट. स्केल यू ऑलरेडी नो. मैंडेटरी पार्ट ऑफ द ग्राफ ये लाजमी होता है, ये नहीं ड्रॉ करते तो मार्क्स नहीं मिलते. वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल ऑलवेज बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल would always be along y-axis. So let us get started. Question number 1, which I was discussing earlier, you have to draw the graph of these equations. Now you can see this thing, and this is not the form of y is equal to f of x. उसका क्योंकि इस फॉर्म का मतलब ये होता है कि y एक साइड पे और x का फंक्शन दूसरी साइड पे. So let us make it this way. It would be y square equals to 9 minus x square, right? अब y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रेडिकल लिया दोनों साइड्स पे, एंड y ने अपने रेडिकल को काट के लाइक कैंसल्ड आउट, एंड दिस वन बिकेम दिस थिंग. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़. अब which values can you give to x? Can you give x any value here? No, you are bound here. क्यों बाउंड हो आप? क्योंकि अगर आप सपोज मैं x को देती हूँ 4, लेट अस से, तो y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल ऑफ 9 माइनस 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर क्या होता है? 16. तो 9 माइनस 16 का मतलब है इट वुड बी सम नेगेटिव नंबर. नेगेटिव नंबर रेडिकल के अंदर आने का मतलब है इट वुड नॉट बी डिफाइंड. कोई रियल नंबर तो रहेगा नहीं, रियल नंबर नहीं रहेगा तो रियल लाइन की बात नहीं होगी, राइट? नंबर लाइन की बात नहीं होगी. सो दैट्स वाई वी विल नॉट बी टेकिंग दोज नंबर्स. कौन से नंबर्स हम नहीं ले सकते? यू कैन सी दिस फ्रॉम हियर. ऐसा कोई भी नंबर हम नहीं ले सकते जो -3 और +3 से बड़ा हो. फॉर एग्जांपल, क्योंकि दिस इज स्क्वायर, राइट, ये उसको पॉजिटिव कर देगा. फॉर एग्जांपल, सो बल्कि बेसिकली दिस इज माय इक्वेशन प्लस माइनस रेडिकल ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ वी ऑलरेडी नो, वी हैव डिस्कस दिस थिंग कि ये चीज़ आपकी होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आपका रेडिकल है ना. वी डिस्कस दिस थिंग इन डोमेन. इसका मतलब है 9 इधर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर वुड गो टू द अदर साइड. यानी कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, और अगर ये बात की जाए 3, यानी x शुड बी लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस 3. और इसका मतलब क्या बनता है? यू कैन से लाइक दिस. ठीक है, तो कौन सी वैल्यूज़ हम लेंगे? कौन सी वैल्यूज़ x को हम देंगे सो दैट y की जो डिफाइंड आंसर्स आएंगे x और ये y. x को आप दोगे, x वुड बी बिटवीन -3 एंड +3. कौन कौन सी वैल्यूज़ होती है -3 और एक तो -3 आ जाएगी, एक +3 आ जाएगी. बीच में आप कोई सी भी 2-3 और वैल्यूज़ ले लें. लेट अस से -2, राइट, -1, 0, 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3. आई नो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ बन गई हैं, आप एक दो स्किप कर लें. आप -3, -3, -1, +1 एंड 3 ऐसे करके ले लें. चॉइस इज़ योर्स. बट एनीवेज द थिंग इज़ दिस शुड बी केप्ट इन माइंड कि कौन सी वैल्यूज़ आप नहीं दे सकते. ठीक हो गया? ये जो प्रोसेस मैंने बताया था, दिस वाज फॉर योर कन्वीनियंस. ये करने की ज़रूरत नहीं है. यू शुड नो इट फ्रॉम द क्वेश्चन. एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो आपकी जो शेप बनेगी दैट वुड बी अ सर्कल. लेट मी शो यू द ग्राफ्स. इस दफ़ा मैंने ये किया है कि I have come up with the solutions for you people. So see, the values lie between, here you can see the values lie between -3 and +3, right? Zoom in मैंने जानबूझ के किया है so that you people can see it. उसके बाद ये वैल्यूज़ दी गई and you got the answer. So simply you just have to plot it. Plotting आपको पता है कैसे करते हैं. This is your graph. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज़ ली, यानी -3, सॉरी दिस साइड पे -1, -2, -3, यहाँ पे 1, 2, 3, राइट. डिस्टेंसेस आपको पता है इक्वल होने चाहिए. और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने वो वैल्यूज़ ले ली. यानी ये भी मैं बता दूँ प्लॉटिंग कैसे करते हैं एक आधे पॉइंट की. -3 पे 0. लुक एट दिस, दिस इज़ योर -3 ऑफ एक्स एक्सिस, और 0 का मतलब है इधर ही, नो डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस. दिस इज़ -2 ऑन एक्स एक्सिस, यानी ये वाला पॉइंट. और इस पॉइंट पे आपने y क्या लेना है? +-2.2. +2.2 मतलब ऊपर. ये आपका 2 है तो इसकी सीध में थोड़ा सा 2 से ऊपर ये यहाँ पे पॉइंट लगेगा. ठीक हो गया? एंड व्हेन यू वुड सिमिलरली व्हेन यू वुड टॉक अबाउट -2 पे -2.2 दिस वन, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं. 2.2 प्लस भी पे भी लगाना है -2 की सीध में, यहाँ पे भी लगाना है -2 की सीध में, यहाँ पे भी देखना है 2.2 कहाँ है, क्योंकि ये प्लस माइनस है दोनों साइड से, राइट. लुक एट दिस नेक्स्ट वन. -1 पे +-2.8. दिस इज़ योर -1.
प्लस माइनस 2.8 का मतलब है प्लस 2.8 यानी यहाँ पे और माइनस 2.8 यानी यहाँ पे, राइट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। 0 पे प्लस माइनस 3, दिस इज़ योर 0 ऑन एक्स एक्सिस, ये जो डॉट होता है सेंटर, ठीक है। इस पे प्लस 3 भी है और माइनस 3 भी है, तो एक डॉट आपने यहाँ लगा लिया, एक डॉट आपने यहाँ लगा लिया। सो आफ्टर पुटिंग इन द डॉट्स in this one, okay, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, then you will be joining the points। इसी तरह यहाँ पे भी you will be joining the points। तो जब आपने points को ऐसे join किया, you will see you will be getting a circle like this। so this would be the graph, right। बाद में इंशाल्लाह, अभी तो this is start for you people, so you will get it इंशाल्लाह from the equation कि equation of circle है, तो हमारे पास circle ही बनना है, ठीक है। स्केल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप स्केल लिखेंगे लेंगे वही आप लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस 2 स्मॉल स्क्वायर्स, दैट इज़ योर ओन चॉइस। जो भी आप अपना ग्राफ पे स्केल लेंगे वही आपने लिखना है। एंड द गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेट अस गो टू द नेक्स्ट ग्राफ, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब मुझे पता है, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और शेप भी आपकी एलिप्स बनेगी। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस शेप्स इंशाल्लाह इन एक्सरसाइज इन चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन। बट एनीवेज दिस इज़ द ईजीएस्ट वे ऑफ कोर्स टू फाइंड इट, बट हमने रट्टा नहीं लगाना कि जी यही 0 पुट करेंगे और ऐसे करेंगे। सिमिलरली एज द प्रीवियस क्वेश्चन, ऑल यू हैव टू डू इज सेपरेट योर y from x, so you will get 1 minus x square divided by 16. Take LCM, so it would be y square divided by 9 is equal to 16 minus x square divided by 16. Now I do not need 9 on this side, so what am I going to do? I'm going to take it to the other side, so it would be y square equals to 9 into 16 minus x square divided by 16. Now take square root on both sides, so it would be y is equal to plus minus 3 divided by 4 to radical of 16 minus x square. Why I took this 3 divided by 4? You can see this was 9 and this was 16. तो ये 16 का radical होता है 4 and 9 का radical होता है 3. So this is how this is gonna be. Okay, no, my bad, this was not 9, this is 4. So it would be 1 minus x square divided by 16 is equal to y square divided by 4. Take the LCM on that side. Let me change the color. So take the LCM, it would be y square divided by 4 equals to 16 minus x square divided by 16. 4 will be multiplied on the other side, so we will get y square is equal to 4 into 16 minus x square divided by 16. 4 ones are, 4 fours are, right. Now take radical on both sides, so we will get y is equal to plus minus radical of 16 minus x square divided by 2. Right, so that's how you're going to do it. आपकी मर्जी है, if you think this method is quite simple, you go with this, but रट्टा नहीं लगाना। और सिमिलरली जिस तरह से सिंपली जिस तरह मैंने पीछे बताया था, बिल्कुल उसी तरह you people have to draw the points and join them. Okay, यहाँ पे इन्होंने points करके नहीं बताया, मैं बता देती हूँ। अगर आप यही points यूज़ करेंगे तो आपका क्या बनेगा, प्लस माइनस 4 एंड 0। और इसका मतलब यानी जब प्लस माइनस x है तो 0 y जो है वो 0 है, यानी प्लस 0 भी लगाना है और माइनस 4 और 0 भी लगाना है। उसके बाद दिस वन इज़ प्लस माइनस 2, इट वुड बी 0 प्लस माइनस 2, राइट। सो द ग्राफ्स आर सिंपल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ दीज काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जिसमें एक्सपोनेंट में मौजूद होता है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। आप इस x को वैल्यूज़ देते जाएंगे डिफरेंट, यू नो दे हैव गिवन देम लाइक स्मॉलर वैल्यूज़ लाइक दिस इज़ योर ओन चॉइस, क्योंकि e मीन्स 2.71828, राइट। सो अगर आप इसकी वैल्यूज़ लाइक पॉइंट्स में लेंगे, पावर्स में, मतलब लाइक x, इफ़ x वुड बी टेकन एज दिस, तो ज़ाहिर है आपकी स्मॉल वैल्यूज़ आएंगी विच वुड बी ईजी फॉर यू टू ड्रॉ ऑन द ग्राफ। सो इसलिए उस हिसाब से आप वैल्यूज़ ले सकते हैं। दैट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, दिस इज़ योर ओन चॉइस, राइट। एक चीज़ माइंड में रखिएगा, ई रेज़ टू द पावर आपको पता है माइनस इन्फिनिटी होता है 0। कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे वैल्यूज़ इसकी इंक्रीज़ करते जाएंगे हम, बड़ी होती जाएंगी वैल्यूज़, आंसर भी बड़े होते जाएंगे। यू कैन सी जहाँ पॉजिटिव पे एक्स ई जा रहा है उसके आंसर्स
लाइक बड़े बड़े होते जा रहे हैं, वो टॉप पे ऊपर की तरफ जा रहा है। कैन यू सी दिस ग्राफ की जो पोजीशन है, डायरेक्शन है, वो क्या है, ऐसे। और जैसे जैसे एक्स नेगेटिव होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, वो यहाँ नीचे एक्स एक्सिस की तरफ आता जा रहा है ऐसे, बट इट वुड नेवर टच द एक्स एक्सिस, नेवर, ठीक है, हमेशा थोड़ा गैप रहेगा। वाई? बिकॉज ई जो पावर है इसकी माइनस इन्फिनिटी हो तभी ये ज़ीरो होता है, और हम माइनस इन्फिनिटी तो ले नहीं सकते, उसी केस में ये सिर्फ आपकी एक्स एक्सिस को टच हो सकता था, वरना नहीं। सो दिस द ग्राफ इज सिंपल अगेन, ईजीली आप कर लेंगे। अगेन द सेम, नेक्स्ट वन, दिस इज़ ऑल्सो this is also exponential function, this is also exponential function, you want me to zoom in, I can do that, this is also exponential function, तो आप इसको भी इसी तरह से points लेके and you just have to draw it. If you didn't get anything please do let me know. और बिल्कुल भी इस तरह से सिर्फ स्केल नहीं लिखना कि वन स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स टू 0.2 यूनिट्स, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना यूनिट्स। और ये किस एक्सिस के अलॉन्ग है हमें नज़र आ रहा है, दिस इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सो यू हैव टू राइट इट डाउन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, राइट। और इसी तरह वाई एक्सिस के अलॉन्ग इन्होंने क्या लिया हुआ है, आई थिंक वन स्मॉल स्क्वायर, ये एस यानी स्मॉल, एस यानी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0.5 व्हाट यूनिट्स अलॉन्ग व्हाट, अलॉन्ग वाई एक्सिस, ऐसे करके, ठीक हो गया। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस, राइट। सो ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस, पैरामेट्रिक इक्वेशंस यू पीपल हैव लर्नड, जिसमें थर्ड वेरिएबल यूज़ होता है। अब थर्ड वेरिएबल यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है, दिस इज एक्स इक्वल्स टू टी, वाई इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यानी दोनों ही वेरिएबल एक्स एंड वाई दे बोथ आर इन टर्म्स ऑफ टी, और टी को आप वैल्यूज़ देंगे जो कि गिवन है बिटवीन -3 एंड +3, दे हैव ऑलरेडी गिवन इट टू अस। तो हम टेबल हमारा कैसे बनेगा, ओके लेट मी टेल यू। ओके सपोज दिस इज़ टी, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई। अब हम t की वैल्यूज़ लेंगे -3 से +3 में, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ऑफ कोर्स यू विल बी थिंकिंग कि मैम सारी लेने ज़रूरी हैं, ले लें अच्छा ग्राफ बन जाएगा, नहीं भी लेंगे तो इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। एनीवेज 5 वैल्यूज़ एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए। नाउ x इज़ इक्वल टू टी, यानी जो t है वही x है अकॉर्डिंग टू देम, सो आई विल बी टेकिंग इट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ओके लुक एट दिस y1, y में क्या है, y इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी जो आपका t है उसका स्क्वायर लेंगे तो वो y बनेगा। सो इट वुड बी -3 था ये, अब ये बन जाएगा 3 3 ज़ा 9 और पॉजिटिव, राइट, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव टर्म का भी। -2 है, दिस वुड बिकम 4, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 0 का स्क्वायर इज़ 0, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। सो दैट्स हाउ यू आर गोना ड्रॉ इट। अब हमें पता है कि ग्राफ में वी जस्ट हैव 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सो आप बिल्कुल उसी तरह से, नाउ दिस वुड बी, एक्स वुड बी योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे हम करते थे, और y वुड बी डिपेंडेंट। तो आप x एक्सिस के अलॉन्ग x को लेंगे 1 2 3 4, लेट अस से सॉरी 4 5 -1 -2 -3 -4, एक ड्रॉ करके देख लेते हैं। -1 पे +1, जब x -1 है लाइक यहाँ पे, तो y क्या है +1, तो लेट्स से यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट वुड बी माई पॉइंट, इसकी सीध में ही मेरा पॉइंट होगा। कैन यू सी दिस, बिकॉज दिस इज़ योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस, वाई डैश एंड एक्स डैश। आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड। सिर्फ ये छोटी सी जो कन्फ्यूजन है, आप टी की वैल्यूज़ देंगे और दोनों में पुट करेंगे, बाकी फंक्शन ग्राफ एवरीथिंग इज सेम। लेट मी शो इट यू हियर, हियर इज़ द सोल्यूशन, यू कैन सी as I told you, you gave values of t to both x and y। x क्या था, t के इक्वल ही, तो जो x आपका था, जो t था वही आपका x के आंसर्स आ गए, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया। एंड y इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर का मतलब है जो आपकी t की वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर लिया तो आपका y आ गया, राइट। सिंपली अब हमने प्लॉट सिर्फ इन दो वैल्यूज़ को करना है, x एक्सिस के अलॉन्ग x को और y एक्सिस के अलॉन्ग y को। t आप प्लॉटिंग में नहीं कर रहे, यू जस्ट हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग t, राइट। एंड दिस काइंड ऑफ शेप इज़ कॉल्ड पैराबोला, ये आप चैप्टर 6 में ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, आई एम zooming it in so that you people can see it clearly, because some of the students were saying that figure is too small and all. Okay,
Look at this one. Here your x is t minus 1. x क्या है आपके पास फंक्शन t minus 1, यानी जो t की वैल्यूज़, पहले तो बात करते हैं t की क्या वैल्यूज़ हैं. -1, t इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 5. ग्रेटर देन -1 में आप ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4. 5 नहीं ले रहे बिकॉज t इज़ लेस देन 5, सो इसलिए यहाँ तक वैल्यूज़ ली. ये t की वैल्यूज़ हो गई. अब x इज़ इक्वल टू t माइनस 1 क्या होंगी? x इज़ इक्वल टू t पुट करते जाएँ और x की वैल्यूज़ आती जाएंगी. t माइनस 1 का मतलब है 0 -1, तो x इज़ इक्वल टू -1. जब t 0 है, x की वैल्यू है -1. t इज़ 0, x इज़ -1. नेक्स्ट वैल्यू देखें, व्हेन t इज़ 1, x फंक्शन है आपके पास t -1. t की वैल्यू पुट करें 1, 1 -1, इट इज़ 0. इट इज़ 0 विच मीन्स व्हेन t इज़ 1, x इज़ 0. बिल्कुल इसी तरह आप इन इक्वेशंस पे पुट करेंगे और आपके आंसर्स आते जाएंगे. ये फॉर x थे. लेट अस डिस्कस द सेम वे फॉर y. इट वुड बी लाइक दिस, ये जो नज़र आ रहा है. So y is equal to 2t minus 1. You will be putting values of t from here into this equation. You will be getting values of y. For example, when you took value of t as 4, देखते हैं y का क्या आंसर आता है. y is equal to 2 into 4 minus 1. 2 4s are 8. 8 minus 1 is 7. ये देखिए जी. When t is 4, y is 7. One more, when t is 1, let us see y का आंसर क्या आता है. when t is 1, y is equal to, हमारे पास y ये है. when t is 1 की हम बात कर रहे हैं, 2 into 1 minus 1. 2 1s are 2 minus 1. 2 minus 1 is 1. यानी जब आपके पास t है 1 तो y क्या आ रहा है? 1. t is 1, y भी आपका 1 आ रहा है. सिंपली अब ड्रॉ सिर्फ ये वैल्यूज़ करनी है, x एंड y. लेट मी शो यू द ग्राफ ओवर हियर. I mean that's how your graph would look like. ठीक है, not a big deal. Look at this. When x is -1, y is also -1. देखते हैं जी, यहाँ पे देखें. when x is -1, ये वाला, इसकी सीध में आपने y ले लिया -1, ये पॉइंट. ठीक है. Look at the next one. when x is 0, y is 1. when x is 0, यानी ये वाली जगह, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, y इज़ 1, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा ऑफ कोर्स, राइट. बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ करके यू हैव टू जॉइन इट, और ये स्ट्रेट आपकी ये इस तरह से लाइन लग जाए. सॉरी, आपकी ऐसे लाइन लग जाएगी. यू कैन सी इट. सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अभी तो आपने पिछला भी देखा, दिस वन यू वुड हैव सीन, ये फेडरल में आया हुआ है 2015 में, राइट. एनीवेज लुक एट दिस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट जगहों पे किया गया है. इसमें ये भी किया हुआ है कि जी एक्स और वाई को आप कन्वर्ट कर लो, सॉरी इस इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर लो एक्स और वाई की फॉर्म में ओनली, वो भी हो सकता है. बट लेट अस नॉट डू इट दिस वे. ये आसान तरीका है. यू जस्ट हैव टू टेक एंगल्स, ठीक है जी, और सीकेंट थीटा, जो एक्स है आपका वो सीकेंट थीटा है, वाई आपका टेन थीटा है. सिंपली उनकी वैल्यूज़ लें. अब आप यू विल बी थिंकिंग कि सीकेंट थीटा की हम वैल्यू कैलकुलेटर से कैसे लें. यू ऑलरेडी नो दैट सीकेंट थीटा इज़ 1 over cos थीटा. लेट मी राइट इट अगेन. सीकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास? 1 over cos ऑफ थीटा. यानी इफ़ योर एंगल इज़ 180 -180, आप उसका cos लो, cos ऑफ -180, और उसको रेसिप्रोकेट कर दो. दैट वुड बी सीकेंट ऑफ -180. ठीक है. वंस अगेन cos 120 लेंगे हम, cos -120, उसका आंसर होता है -1 over 2. तो जब सीकेंट की बात होगी दिस वुड बिकम -2. रेसिप्रोकेट कर दोगे आप, इसको उल्टा कर दोगे. ये देखिए जी -2. ठीक है. सो दैट्स हाउ दिस वुड बी ईजी. वन मोर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव cos ऑफ 60. कॉस में क्यों ले रही हूँ? क्योंकि सीकेंड है. सीकेंड आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से नहीं ले सकते. आप कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, उल्टा कर देंगे. cos ऑफ 60 आपके पास होता है 1 over 2. तो सीकेंड ऑफ 60 क्या होगा फिर? 2 over 1 मीन्स 2, लाइक दिस. ठीक है. और 10 आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर दे देगा. तो जब वो कर लें उसके बाद यू जस्ट हैव टू प्लॉट दीज 2 वैल्यूज़. ये वाली -1 0, ये वाली वैल्यूज़ आपने प्लॉट करनी है बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको बताया गया. स्केल इज़ अ मस्ट. यहाँ नहीं लिखा हुआ, आपने स्केल लाजमी लिखना है. एंड दिस शेप इज़ कॉल्ड हाइपरबोला बाय द वे. ठीक है जी. सो आई विल बी कमिंग with the new topic of continuous or discontinuous function in the next video. Thank you.